alive का मतलब where the alive means कि where everything was like available. The animals were available, the food was available, the like you can say the surrounding was available, the trees were available, so that is known as alive. Now, their limbs stretched in rhythmic motion speak not just of movement but of a human curiosity. Now, this line, again I'm reading it out. Their limbs stretched in a rhythmic motion speak not just of movement but of a human curiosity. मीन्स क्या है इसका? मीन्स है कि जो वो लोग स्विमिंग करते थे तो उनके द वे दे यूज टू स्विम, it shows that how like deeply they are involved in the swimming, how seriously they are swimming, and how fantastically they are swimming. ठीक है? Of a species drawn instinctively to embrace water. Again देखो दोबारा एक बहुत ही खूबसूरत सा like phrase बोला है, of a species drawn instinctively to the embrace of water. और ऐसा लगता था कि वो लोग जो तैर रहे हैं उन वो बने ही उस माहौल के लिए है, बने ही उस वाटर के लिए है, बने ही उस जगह पे स्विमिंग करने के लिए, क्योंकि एट दैट मोमेंट व्हेन समबडी सॉ आउटसाइड ऑफ द वाटर स्विमिंग दोस पीपल, ठीक है, ऐसा लगता था कि द वाटर इज वेलकमिंग देम विद अ हार्ट एंड सोल एंड वाटर इज जस्ट मेड फॉर देम. ठीक है, ऐसा लग रहा था, ऐसा लगता था उनको देखने के बाद कि वाटर वाज मेड फॉर देम टू स्विम ओवर देयर एंड वाटर वाज सो हैप्पी टू वेलकम देम. Embrace of water means the water basically felt so happy. It was just a, you can say the second paragraph is just a scene जिसमें ये बता रहे हैं आपको कि when they used to swim in that water, it looked so beautiful, it was so rhythmic, it was so attractive. When the people saw them swimming in that water, like people always never stop, never, I mean couldn't stop them uh, uh, to praise their the way of swimming. ठीक है, उनको उनकी तारीफ किए बिना लोग नहीं रह सकते थे. एंड व्हाट वाज द रीजन? एक तो उनका वे ऑफ स्विमिंग, एंड व्हाट वाज द सेकंड रीजन? द प्लेस जहां पे लाइक वो लोग स्विमिंग करते थे तो उसकी ब्यूटी. ठीक है, द लुक. ठीक है, ओके. थर्ड पैराग्राफ स्टूडेंट्स. स्विमिंग देन वाज नॉट अ स्पोर्ट. फिर उस वक्त फिर एक लाइक एट दैट मोमेंट स्विमिंग को स्पोर्ट्स नहीं हुआ करता था. ठीक है, दैट इज द रीजन. यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन बताई है लॉन्ग बिफोर ओलंपिक पूल्स, इसलिए उसका जिक्र किया गया है कि उस वक्त जब स्विमिंग ये लोग किया करते थे, या जो एंशंट इजिप्ट के लोग जो स्विमिंग किया करते थे, तो वो कोई स्पोर्ट्स नहीं होता था. इट वॉज sacred dance between man and nature. Sacred dance between man and nature. It was a relationship to be shown with the nature, कि how much we love the nature. ठीक है, तो वो उस वक्त शो करना चाहते थे कि we all love the natural thing, we all love the things that has been blessed to the human mankind, to this world by the God. तो हम वो दिखाना चाहते थे. ठीक है, the cave tells a tale not just of endurance but of art, connection, and the earliest signs of leisure. The cave tells us. 2 मिनट आप मुझे देंगे, अजान इज गोइंग ऑन, तो उसके बाद अगर इन बिटवीन कोई अगर सवाल है तो लिख लो, और अजान अजान के बाद मुझसे बात करना.
Okay, guys. So let us get again, like start again. Okay. I'm starting from the third paragraph once again, students. Swimming then was not a sports. उस वक्त sports नहीं हुआ करती थी. It was a passion. Simple. It was a secreted dance between a man and a nature. Means they want to show the love with the nature. The cave tells a tale, not just of endeavorance. वो जो केव थी जहां पर ये वाटर रिवर मौजूद था, ठीक है, यानी अंडर लाइक you can say in the Sahara there was a cave where the water was present and where these people used to swim. ठीक है, it was not like tells us not just an of like the cave tells a tale not just of endurance. ये जो केव थी ये सिर्फ हिम्मत और हौसले की टेल्स हमें नहीं सुनाती, बट ऑफ आर्ट. आर्ट की मीन्स आर्ट ऑफ स्विमिंग, connection with the nature and the earliest signs of leisure, और एक शौक. लेजर यहाँ पर मीनिंग है शौक, एक एक एक्टिविटी, एक जबरदस्त साइंस ऑफ एक्टिविटीज की हमें दास्तान सुनाती है. Beneath the rocks, sun-baked surface lies the spirit of the world's old swim. Beneath the rocks means in चट्टानों के नीचे. Sun-baked surface. Sun-baked surface का क्या मतलब? Extremely hot. Lies the spirit of the world's old swim. जहाँ पर ये दरिया पाई जाती थी, जहाँ पर ये पॉन्ड पाया जाता था, वहाँ पर एक वर्ल्ड्स ओल्ड स्विमिंग का स्पिरिट देखने को मिलता था, एक जोश व वलवला देखने को मिलता था. A reminder that even in a prehistory, humans sought grace and movement and a beauty of survival. और वहाँ पर ये देखने को मिलता था, द रिमाइंड, और ये वो रिमेन्स हैं जो कि हमें प्री हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में बताता है. द ह्यूमन सॉट, जिससे जहाँ से इंसान अपनी 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 बका की जंग लड़ते थे, अपनी अपनी शान और शौकत दिखाने की कोशिश करते थे, अपने स्किल्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे दुनिया के सामने. एंड अ मूवमेंट एंड अ ब्यूटी इन सर्वाइवल, और अजीब लाइक डिफरेंट किस्म के एक्टिविटीज दिखाकर वो लोगों को लुभाते थे. इन द अदर इन शॉर्ट हम ये कह सकते थे कि it was a place of activity where the people used to show their swimming activities in a different manner, and as a result they get the money, or as a result they get the praise, or they get the food. And this way they earn their living. सर्वाइवल का मतलब यहाँ पे अपनी कर्तव्य दिखाकर लोगों से पैसे हासिल करना, या उनसे फूड या दूसरे किस्म के फैसिलिटीज को हासिल करना था. ठीक है, अब इस पूरे पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन है पहले बताओ, उसके बाद फिर हम आगे बात करें. जी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी. जी मिस्टर इब्राहिम साहब प्लीज. सर सर जी अभी तो अभी लिखा था कि फर्स्ट स्विम नॉट फॉर मेडल. अभी लिखा है कि हम पैसे के लिए करते थे. दोबारा बोलो. पहले लिखा है कि फर्स्ट स्विम वाज नॉट फॉर मेडल्स. इनाम के लिए हाँ, नहीं हुआ था, लेकिन अब आखिर में लिखा है कि हम इन पैसों देखो के लिए करते थे. पैसों के लिए यहाँ पे सर्वाइवल का क्या मतलब है? इट वॉज फॉर सर्वाइवल मीन्स यहाँ पे जब वो लोग कर्तव्य दिखाते थे अपने, तो उस पे लाइक इन रिटर्न लोग उनकी किसी भी तरह से, उस जमाने में तो पैसे नहीं होते थे, लोग फूड देते थे. सर्वाइवल का क्या मतलब? जिंदा रहना. इवन इफ लेट्स सपोज, चलो हम थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि दे यूज टू गिव देम मनी और गोल्ड कॉइन्स और एनीथिंग, गोल्ड कॉइन्स वगैरह. लेट्स सपोज उस जमाने में गोल्ड कॉइन्स वगैरह चलते थे, सिल्वर कॉइन्स चलते थे, तो वो लोग उसको कमाने के लिए, कमाने का जरिया, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते थे वो कमाने का जरिया थे. मेडल्स का मतलब यहाँ पर क्या? कॉम्पिटिशन्स थी. यहाँ पे ओलंपिक का कोई खेल नहीं होता था, यहाँ पर कोई यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स नहीं होते थे, यहाँ पे कोई शर्तें नहीं लगती थी. वहाँ पे डिफरेंट किस्म के कर्तव्य दिखाकर, डिफरेंट किस्म के स्किल्स, अपनी स्विमिंग स्किल्स को शो करके वो लोग अपना गुजर बसर करते थे, ताकि लोग उनको देखकर कोई सोने का सिक्का दे दे, आई मीन गोल्ड कॉइन दे दे, कोई सिल्वर कॉइन दे दे, या कोई फूड दे दे, किसी भी तरह कहीं से कोई मदद कर दे जिसके बिना पर वो सरवाइव कर सके. ठीक है, यानी हम और आप क्या करते हैं? ठीक है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? दे डू समथिंग
No matter whatever they do, some people are doing their business, some people are working in the office, some people are even like you can say teaching online. So ultimately reason क्या होता है? The reason is to earn money. So that is the thing. जी, मजीद क्वेश्चन बताओ मिस्टर इब्राहिम, कंटिन्यू करो. sir. Okay, just yes, other students, Ilma, yes, Faiza, yes, Mr. Khizar, please, आप लोग बताइए. सर मैं सर ये मैं ये पढ़ी थी पढ़ी थी जी. द वर्ड्स द ओल्डेस्ट वर्ल्ड्स स्विम, तो ओल्डेस्ट उसके स्विम, तो उसके क्वेश्चंस में क्वेश्चंस क्वेश्चन में 2 भी क्वेश्चन समझ 2 भी नहीं आ समझ रही नहीं थी. आ रही अभी थी. क्वेश्चंस हाउ को तो डज बाद हाउ में डज करेंगे ना. अभी क्वेश्चन वेट अभी क्वेश्चंस को थोड़ा सा अभी लेटर ऑन. अभी तो मुझसे पैराग्राफ में पूछो क्या पूछना है. सर सर पैराग्राफ में पैराग्राफ में सहारा को सहारा को लश एंड लश लाइफ एंड लाइफ के साथ साथ डिस्क्राइब किया डिस्क्राइब गया है. किया गया हाँ है. तो हाँ इससे हाँ जरा तो इससे हाँ. जरा इसको देखो, ये सहारा, आज जो हम सहारा को जानते हैं, ठीक है, सहारा डेजर्ट है. ये सहारा डेजर्ट इज नॉट एट ऑल लाइक स्मॉल डेजर्ट. ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो कि ऑलमोस्ट आपकी आपकी जो है वो 35 to 40% ऑफ दिस लाइक अर्थ है. ठीक है, 35 to 40% ऑफ दिस अर्थ. सोच सकते हो आप लोग कितना बड़ा है ये. ठीक है, तो पहले ज़माने की अगर हम बात करते हैं, एंशंट, एंशंट का मतलब थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक, तो उस ज़माने में ये डेजर्ट बहुत हरे भरे हुआ करते थे. यहाँ उस वक्त बारिशें होती थी यहाँ पर. उस वक्त लाइक ट्रीज, ग्रास, डिफरेंट किस्म के स्पीशीज हुआ करते थे. ठीक है, उस वक्त इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी उन सहराओं में, और वो उतने बड़े, उतना ज़्यादा गहरा सहरा नहीं हुआ करता था जहाँ से रेती रेत हो. वहाँ पर बहुत सारी दूसरी लाइक यू कैन से ट्रीज, प्लांट्स, और लाइक डिफरेंट किस्म के स्पीशीज, ठीक है, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स, ग्रास, वो बहुत ज़्यादा होते थे. अब नहीं होते, लेकिन अगर हम अब की बात करें, दैट इज़ डिफरेंट. तो दिस इज व्हाट दे आर कॉलिंग अबाउट सहारा यूज टू बी वंस अ लश ग्रीन वैली. ठीक है, तो ये पहले की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं. और ये जो हमने अभी एक्टिविटीज़ की बात की लोगों की, जिस पे स्विमिंग वो करते थे और लोग जो करतब दिखाकर पैसे कमाते थे या लोगों की दाद कमाते थे, तो ये टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक की बात कर रहे हैं. वो अभी की बात नहीं कर रहे. अभी तो सिर्फ वो एक खंडर बन के रह गया. अभी तो सिर्फ एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बन के रह गया. दैट्स इट. जी. नाउ एनी मोर क्वेश्चंस मिस्टर खजर, मिस्टर मिस इल्मा? क्वेश्चंस है तो बताओ, फिर मैं लाइक देन आई विल कम टू द क्वेश्चन पार्ट. ओके जी, ठीक है. अब नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड द क्वेश्चन पार्ट ओवर हियर. What does the I will just explain you the question, and I'll be giving you some time in order to like find out the answers. Okay, so what does the author suggest by saying the first swim was not for males but for the survival? ये already मैं कई बार इसका आंसर दे चुका हूँ. ठीक है, how does now like Faiza, your question, तुम्हारे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. How does the description of the Sahara as once lush and alive contrast with its present day image? अभी मैंने जवाब दे ही दिया इसका पूरा. Am I, did I give you the answer of this question or not? Yes, Faiza, बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन था ये, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ. यस सर. यस सर. Of course I gave you the answer, लेकिन अब उसको डिजाइन कैसे करना है वो तुम लोग देखोगे उसको. ठीक है, अच्छा. What does the phrase invisible waters imply about the swimmers in the cave? Invisible waters का क्या मतलब? Invisible water का कोई मतलब मुझे बताएगा प्लीज? सिर्फ मतलब बता दो मुझे. Invisible water. हाँ जी. आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, बिल्कुल भी आवाज, आप जो भी बोल रहे हो आवाज नहीं आ रही है. जी दोबारा बोलो. स्पीक अगेन. Yes, speak again please. Invisible water, anybody can speak, come on, anybody can speak. Invisible water का सिर्फ मुझे मतलब बताओ, क्या मतलब हुआ इनविजिबल? हाँ बोलो इब्राहिम. Water that had been evaporated years ago. Invisible, what does invisible water implies about the swimmers in the cave? देखो आगे क्या बोल रहा है, about the swimmers in the cave means यहाँ पे देखो इब्राहिम ने जो जवाब दिया अभी, the answer he gave somewhat correct है, लेकिन it is not correct as per the like you can say क्या कहते हैं इसको, as per the
क्वेश्चन नहीं है. इनविजिबल वाटर का यहाँ सिर्फ मैं आपको मतलब बता देता हूँ. एब्सोल्युटली क्लियर वाटर. ठीक है, इनविजिबल वाटर. इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर समझते हो ना, ये वही वाला है, क्रिस्टल क्लियर वाटर. ठीक है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, अभी मैं आंसर डिस्क्राइब करूंगा तो फिर देखेंगे. ठीक है, चलो. Why might an author call swimming a scare dance in the contest? Scare dance in order to show, अब ये मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ इसका. In order to show the relationship between the nature and the between the nature and the human. ठीक है, scare dance. अब उसका मतलब तुम लोग खुद निकालोगे, मैं नहीं जानता क्या है इसका. What does the phrase beauty in survival tells us about an early human life? अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 1 में इसका मैं जवाब दे चुका हूँ. ठीक है, अल्टीमेटली ये इब्राहिम साहब ने पूछा था, तो ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द आंसर्स ऑफ दिस. ठीक है, अब उसको खुद रिकॉल करोगे क्या. व्हाई इज द केव ऑफ स्विमर्स डिस्क्राइब्ड एज अ हॉन्टिंग मास्टरपीस. सबसे शुरू में ये हॉन्टिंग मास्टरपीस वाला जिक्र किया गया. ठीक है, सो व्हाई आई यूज द वर्ड हॉन्टिंग. द हॉन्टिंग का वैसे मतलब होता है डेंजरस, फियरफुल, somewhat like you can say somewhat fearful, somewhat you can say precarious. Precarious का मतलब होता है likely to fall down. ठीक है, तो बताओ अभी, कम ऑन, अब आंसर दो इसके जरा. आई एम गिविंग यू 3 to 4 minutes. सबके मुझे आंसर चाहिए. यूज दीज like word meaning section as well. Go ahead, come on, shabash. I'm muting.